Gentlemen, after Ayodhya and Kashi, now it's time for the truth of Mathura to surface. Look at your screens. These are symbols and signs found at the Shahi Eidgah Mosque complex in Mathura, adjoining the Krishna Janmabhoomi temple. Hindu devotees believe that this kamal or lotus is a sign that Krishna Janmabhoomi lies below the mosque. Remember, a pillar with a lotus-shaped top is typical of mandir architecture. Devotees believe Hindus have prayed here for over 1,000 years. There is documented proof that Aurangzeb destroyed the Keshav Dev temple in 1670. This symbol of Om, however, still graces the walls of the structure as per Hindus. Om, of course, is an auspicious sign in Hinduism. Another symbol which you can see on your screens is believed to be a Sheshnag, a Hindu deity who protected Lord Krishna on the night of his birth. Of course, the truth behind these symbols will best be decided by the court and archaeological experts. But today, we've taken a supreme step towards unraveling the truth. Today, the Supreme Court refused to stay an Allahabad High Court order which allowed a survey of the Shahi Eidgah complex. Remember, the Masjid Committee had challenged the High Court order which sought a survey by a 3-member team of advocate commissioners. Also, the petition was filed by the deity Bhagwan Shri Krishna Virajman and others, claiming that Lord Krishna's birthplace lies beneath the mosque and only a scientific survey can confirm the truth of this claim. While the Hindu side has welcomed the Supreme Court's order, the Muslim side says that a survey cannot prove anything. So the Shahi Eidgah Masjid had challenged this order before the Honorable Supreme Court, and Supreme Court has refused. On December 18th, the Allahabad High Court will fix the modalities as to who all is going to be in the survey, what will be the timing of the survey, and what will be the members who will be going in the survey commission. All these things will be decided by the Allahabad High Court on 18th of December. ये बात साबित हो गई कि जहां आज मंदिर बन रहा है ये राम जन्म स्थान नहीं है, ये बाबरी मस्जिद है। किसी मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद नहीं बनाइए। हमारे दिल में तो है। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई है। हम इस फैसले को सही नहीं समझते, यानी कानून की बुनियाद पर सही नहीं है। इसलिए कि कानून जब ये कह दिया कोर्ट ने कि मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है, तो फिर मस्जिद को मंदिर को देने का ये कोई फैसला सही नहीं हो सकता। Even while the survey is yet to happen, certain opposition leaders are already fear-mongering and giving it a political spin. Listen in. नहीं, ये ऐतिहासिक फैसला है। हम इस फैसले से सहमत नहीं। दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। Now Ram Janmabhoomi is nearing completion. They lost that agenda. Now they want to create more and more agenda. Other Sangh Parivar outfits will take up this issue and they will create problems. This is what is going to happen. मैं तो सीधे मानता हूं कि इस देश की संसद ने एक एक्ट पास किया था 91 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पता नहीं जुडिशरी क्या कर रही है। उस एक्ट का कोई मतलब रह गया क्या? कि कभी बाबरी मस्जिद है तो कभी बनारस की ज्ञानवापी है तो मथुरा की मस्जिद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या कोई दूसरा काम बाकी नहीं रह गया है? जबकि पार्लियामेंट ये कानून बना चुका है कि 1947 के अंदर जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। But is the opposition correct to say that the Places of Worship Act makes the Hindu side's plea completely invalid? Let's remind you on the NewsHour fact check what the Mathura court had said in May 2022. It contended that the 1968 compromise decree by the Krishna Janmasthan Seva Sangh was drawn before the Places of Worship Act in 1991. Therefore, the Act shall not be applicable on this particular dispute. So, ladies and gentlemen, the legitimate question everyone is asking tonight: why fear survey which only will uncover the truth? Why are people running away from the truth? That's the question and that's the debate coming up
on the other side. You're watching the News Hour first. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे से जुड़े दो पक्ष। विष्णु जैन वकील हैं हिंदू पक्ष के और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वारिस पठान, प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं AIMIM के। और अब बढ़ते हैं फायर राउंड के सवालों की तरफ, क्योंकि आज की डिबेट को मैंने 5 फायर राउंड बनाए हैं जिसमें दोनों पक्ष रखे जाएंगे और फैसला तो खैर कोर्ट करेगी, लेकिन आज फैसला जनता करेगी क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है। सत्यमेव जयते, फिर सर्वे से क्यों डरते हैं? वारिस पठान जी, आज सबसे पहला सवाल पब्लिक यही पूछ रही है, सच से इतना आपको भागने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर सर्वे होता है तो सच पर ही कहीं ना कहीं रोशनी पड़ेगी। इस सच से क्या डर है? नहीं, हम सच से नहीं डरते, हमको डर है धोखे से। जो धोखा हुआ हमारे साथ बाबरी मस्जिद के वक्त, उसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था, एफिडेविट फाइल किया गया था, लेकिन हमने देश दुनिया ने देखा कि 6 दिसंबर 1992 के दिन किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम तो डेमोक्रेसी के अंदर काला दिवस मनाते हैं उसको, कि उस दिन ऐसा कर दिया हमारे साथ। पहले कांग्रेस के राज में बोला ताला खोल दिया गया, उसके बाद पता चला आधी रात को वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई और फिर ये कांड हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि अब देश किसी की आस्था पे न चले, ना आपकी ना हमारी। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और संविधान ये है कि जो पार्लियामेंट में कानून बनाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो आज भी लागू है, वो ओवररूल नहीं हुआ है। उस कानून के हिसाब से ये साफ दिखाता है कि जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट जो है 15 अगस्त 1947 के पहले के, उसका आप नेचर और उसका कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की फिर बात में ये डालने का क्या मकसद आता है? सिर्फ आपको नफरत फैलाना है। ये तो सिर्फ मुसलमानों की जो चीजें आपको हथियाना है और देश के अंदर नफरत अराजकता फैलाना है। इसकी मैं आपको बताऊंगा, जो कृष्ण जन्मभूमि जिसकी आप बात कर रहे हो, शाही ईदगाह मॉस्क की जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, 1968 में एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट हुआ था। 1968 के सवाल पर आऊंगी वारिस पठान जी, मैं 1968 के सवाल पर आऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि सच से परहेज क्यों है? नहीं, मेरे वो सवाल है, मैं उन सवालों पर छोटी बात नहीं कहूंगी, आपको समय दूंगी ताकि पूरा मुद्दा डिस्कस हो। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, सच से क्यों परहेज हो रहा है? और आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो मैं विष्णु जैन जी से पूछना चाहती हूँ, क्या कोर्ट को संज्ञान नहीं है कि 1991 का एक लॉ है? और क्या कोर्ट में अगर सारा मामला है तो ये कहा जा सकता है कि देश संविधान से चल ही नहीं रहा, आप किसी तरह का बुलडोजर चला रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे वारिस भाई को, अगर आप खुद भी वकील हैं, अगर आप इस केस की लीगल हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे, 25 सितंबर 2020 को मथुरा के सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था और एक लंबी 3 साल की लीगल लड़ाई के बाद, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्ग्यूमेंट को भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते, वक्फ एक्ट के आर्गुमेंट को भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते। वारिस भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है दैट कोर्ट्स आर अनअवेयर अबाउट द आर्गुमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। उनको इस आर्गुमेंट के बारे में पता है और कोर्ट्स ने फाइंडिंग दिए, रूलिंग दिए कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ज्ञान व्यापी के केस में भी 2 जजमेंट्स और राइट टिल सुप्रीम कोर्ट का भी यही व्यू रहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है। अब अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं आज कोई मस्जिद तोड़ के वहां पे मंदिर तामील कर दूं और कहूं वारिस भाई उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं? नहीं, पर एक बात तो है कि डर और धोखे से उनको लगता है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था। आप इस मुद्दे को करिए, मेरिट्स ऑफ द केस पर अभी जाएंगे, लेकिन धोखा कहीं ना कहीं हुआ तो है। बाबरी मस्जिद को ढाया तो गया था। नहीं, ऐसा गलत बात है, कोई धोखा नहीं हुआ था। जो बाबरी मस्जिद थी वो वहां पे ऑलरेडी हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था और वो हम सारे हिंदुओं के लिए शौर्य दिवस है, गर्व का दिन है, जहां पे हमने भगवान राम का जो मूल स्थान था उसको वापस स्थापित करने का काम किया है। और 22 जनवरी को आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहां पे भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो जो ये कहते हैं मस्जिद है, मैं कहना चाहता हूं मस्जिद नहीं महजिद है। 1528 में एक आक्रमणकारी बाबर वहां से चला था जिसने कसम खाई थी कि आज मैं जैसे शराब के प्याले तोड़ रहा हूं नाविका जी, उसी तरह से
मैं मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। हिंदुओं के सर के पिलर काट काट के सर के पिलर बना दिए गए थे और उस कसम के साथ अयोध्या में आके हमारी राम मंदिर का विध्वंस किया था। वैसे ही बर्बरता हमने औरंगजेब की देखी है मथुरा के केस में और ज्ञानव्यापी के केस में, जहां पे यह फरमान दिया गया कि जाओ जाके मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो और जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं आगरा की मस्जिद के नीचे सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाए। आज मैं वारिस भाई से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस संवैधानिक इंडिया में एक इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे ये हक भी नहीं बनता है कि मैं लीगली अपने सवाल पूछ सकूं और ये बात कोर्ट के माध्यम से एविडेंस के माध्यम से सेटल कर सकूं? ये कौन सा डोमिनेशन है? और अगर इसके बात की जाती तो आप कहते हैं धोखा हो गया। किस तरह का धोखा सर? विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक व्यू लिया है और वो व्यू अपनी जगह कायम है। लेकिन अगर विष्णु जैन जी कहते हैं कि एक नागरिक होने के नाते उन्हें कोर्ट के पास जाने का एक हक है, आप उनसे यह हक संविधान के तहत कैसे छीन सकते हैं? नहीं, सबको अधिकार है कोर्ट में जाने का। मैंने ये कब कहा कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते, लेकिन एक जो चीज सेटल हो गई है उसको वापस आपको रेक्टिव करना है। अभी विष्णु जैन ने कहा कि पहले मंदिर था, सुनिए सर सुनिए, पहले इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के टाइम भी वहां पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 के तहत ये ऑर्डर पास किया। अगर सोचिए जिस दिन हमारी मस्जिद अगर वहां पे होती तो क्या ऑर्डर होता सुप्रीम कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अलग होता? नहीं होता। नहीं विष्णु जी, आप सुनो यार, आप बोल रहे थे तो मैं तो खामोशी से सुन रहा था ना। अच्छा विष्णु भाई, आप सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता। आप बीच में बोलेंगे तो कैसा चलेगा? नहीं, मैं भी बीच में बोलूंगा, आप भी बोलेंगे तो दर्शक तो नाराज हो जाएगा ना। आप तो लॉयर है, जरा सुनिए नाविका जी, मैं ये बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी ये कहा था कि यहां पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। यूनानिमस डिसीजन था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये ऑर्डर पास कर दिया। हमको उस वक्त भी जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था तब भी था कि लोग निकालेंगे। तो बताइए मुझे विष्णु भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बना, पार्लियामेंट के अंदर कानून बना, किस लिए बना था? उसका इंटेंशन क्या था? क्या उसका इंटेंशन को आप खत्म नहीं कर रहे हो? क्या आप सर्वे करके दिखाना चाहते हो? चलिए, आपने 1991 की बात कही, आपने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं कह दूं कि बाबरी मस्जिद जिसे आप कहते हैं, जिसे विवादित ढांचा कहा था, वहां अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और 22 जनवरी को राम मंदिर बन जाएगा और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो चैप्टर अब खत्म हो गया। वारिस पठान जी, मैं अब दूसरे सवाल पे जाती हूं जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का, जब एक वंस मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। यस, हमारे लिए भी यही लॉ है कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। और सुप्रीम कोर्ट के 106 पढ़िए जिसमें डेटीज के राइट लिखे हुए हैं। भाई अगर आपका नियम है कि मैं मानती हूं तो हमारा भी नियम है। मैं मानती हूं आपका एक पेटिशन है, आपका एक पेटिशन है, विष्णु भाई का एक अलग पेटिशन है और इस पर फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकती है। संविधान में ऐसे ही हो सकता है, ये मैं मानती हूं। और 9 तारीख को फैसला होना है, जनवरी में सुनवाई डाल दिया लोगों ने। लेकिन आज तो स्टे नहीं हुआ, इसलिए जनवरी को जो मेन कंटेंशन है उसे 1968 यानी 1968 के समझौते पर सवाल सबसे ज्यादा उठाया जाता है। अब मैं 1968 के समझौते पर सवाल पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी। वारिस पठान जी, 1968 का समझौता हुआ था, इसके बाद मामला खत्म, ऐसा कहा जा रहा है आपके पक्ष के द्वारा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जब इसको कॉन्टेस्ट किया गया, टैक्स की रसीद दिखाई गई और यह बताया गया कि वो जो अग्रीमेंट था वो था बिटवीन कृष्ण सेवा संघ और जो एक्चुअल ओनर है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। तो कोई और जो वहां पर है वो एक ऐसा समझौता करने के स्टेज पर है या नहीं है, उसको ये राइट है कि नहीं वो समझौता कर पाए, कोई अग्रीमेंट कर पाए, इस पर बहस छिड़ी हुई है। इस पर आपका क्या व्यू है?
मैं आपको एग्जांपल दूंगा नविका जी, बुरा नहीं मानना, आपका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आप आज टाइम्स नाउ नव भारत की चीफ एडिटर है। आज आपने और सामने किसी के साथ आपने एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट कर दिया, कोर्ट के द्वारा एग्रीमेंट हो गया, फाइनल हो गया कि भाई ये आपका ये हमारा। उसके बाद अगर 20 बरस बाद कोई टाइम्स नाउ की नई एंकर आती है, एडिटर आती है, वो बोलेगा नहीं नाविका कुमार ने जो किया था वो उनका था, हमारा अलग होगा, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? और कोर्ट के जरिए हुआ है नाविका जी। ये लोग आज झूठ फैला रहे हैं, ये चाहते हैं कि नहीं वो जो एग्रीमेंट था वही खारिज हो जाए, नहीं होगा, कोर्ट से हुआ है, यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। आपने 68 से आज हम आ गए, 50 साल ऊपर हो गए, क्या किया आपने नविका जी? इन लोगों ने कुछ नहीं। ये सच क्यों नहीं मानते? सवाल आपका जो था ना, सच को मानना चाहिए, सच मानिए कि किसी ने मंदिर तोड़ के नहीं बनाया। 4000 साल 5000 साल पहले जिसने जो मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, जोर के ऊपर काम किया है। वारिस पठान जी, जब संविधान नहीं था, आज संविधान है। जब संविधान नहीं था, संविधान है नविका। वारिस पठान जी, उसी तरह आज के रूल्स के हिसाब से मैं एडिटोरियल डिसीजन ले सकती हूं। मैं ये डिसीजन ले सकती हूं कि इस चैनल पे कौन सी खबर चलेगी, उस पर लाइन क्या चलेगी, लेकिन मैं ये बिल्डिंग नहीं बेच सकती क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं बिल्डिंग की ओनर नहीं हूं। मेरा टाइटल है एडिटर इन चीफ खबरों के लिए, बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं। मैं तो कम से कम अपने बारे में इतना ही कहूंगी। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वारिस पठान जी 1968 का, इस पर आपका क्या जवाब? कोर्ट के जरिए समय दे दीजिए। वारिस भाई, मैंने आपको सुना, मेरी बात जरा सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री बताना चाहता हूं। आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो, फिर मैं आपको समय देते रहूं विष्णु भाई, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं बीच में बोले, अच्छा बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं। हो जाने देते, फिर आप बोलते तो अच्छा भी लगता। अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरी बात हो गई, अभी आप बोलिए जरा, फिर मैं आपको जवाब। मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। 1618 में 1968 का जो सेटलमेंट हुआ है ना, मैं समझा रहा हूं, एक मिनट मेरे को अपनी बात रख लेने दीजिए। हमारे हिसाब से सेटलमेंट फाइनल हो गया है। ठीक, इस वक्त ये इशू उठाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब इशू को मेरे 2 सवाल आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। उससे पहले भी ये मंदिर काफी बार तोड़ा जा चुका है। 1670 में औरंगजेब का फरमान आता है कि जाओ जाके मथुरा की शाही ईदगाह मथुरा में जो मंदिर है उसको तोड़ दो, और वहां पे बड़ी और छोटी मूर्तियां आगरा की मस्जिद के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाए। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ जिसमें मराठाओं ने उस जगह को जीता। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने पूरे एरिया को अपने कब्जे में लिया। 1815 में नाविका जी एक ऑक्शन हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और उस ऑक्शन में 13.37 एकड़ जमीन जो पूरे सनातनियों के लिए पुण्य भूमि है, पूज्य भूमि है, उस ऑक्शन को राजा पट्टीमल ने बनारस के ऑक्शन परचेज में खरीदा। उसके बाद राजा पट्टीमल के वारिसों ने 1944 में ये पूरी जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय को 13,400 रुपए में दी, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय की मंशा थी कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। 1951 में एक संगठन बना जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया। एक संगठन बनाया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ 1958 में, और जानती हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने क्या केस दायर किया 1964 में कि इस भगवान की संपत्ति में कुछ हिस्से में मस्जिद पक्ष के लोग घुस आए हैं, यहां पे अवैध मस्जिद बना रहे हैं, इनको रोका जाए, और उसमें उन्होंने समझौता कर लिया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल अच्छा एक सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दो। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा सवाल का जवाब दे दो विष्णु भाई, ओनर ऑफ द लैंड। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रेम से एक सवाल का जवाब मेरे दे दो। पहली बात, वारिस भाई खुद भी लॉयर है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों जजमेंट है जिसमें बात होल्ड की गई है कि फ्रॉड एंड एवरीथिंग, अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई या अचीव की गई है तो उसको भी कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। और एक बात कहना चाहता हूं, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देवता के इंटरेस्ट के खिलाफ, देवता की संपत्ति के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता है, इसीलिए वो समझौता अवैध है, इलीगल है, जिसको हमने कोर्ट में। चलिए, वारिस पठान का सवाल है, वो कह रहे हैं 1968 का जो अग्रीमेंट है वो फ्रॉड है। 10 सेकंड ओके, रिस्पॉन्ड। फ्रॉड अग्रीमेंट पर रिस्पॉन्ड करिए। ये फ्रॉड था, 50 साल के बाद इनको याद आया, 50 साल के बाद इनको याद आया कि जो कोर्ट के अंदर एग्रीमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है भाई कि फ्रॉड को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है जब उजागर हो। विष्णु भाई, तो फ्रॉड उजागर हुआ 25 सितंबर 2020 को। 1670 में ये हुआ,
सुनिए सुनिए, अच्छा 50 साल के बाद फ्रॉड उजागर हुआ, हमको मालूम है कि उजागर हुआ, 24 के इलेक्शन को देखते हुए उजागर हुआ है। सुनिए मेरी बात, अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, 1670 में ये हो गया, 1815 में ये हो गया, 1770 में ये हो गया, तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट में हमारे जो एमपी बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, क्या उनको ये सारी चीजें पता नहीं थी? क्या वो बेवकूफ है क्या? अरे कानून बनाए, ये सब चीज को तो आपको क्या लगता है जो कोर्ट ऑर्डर दे रही है, कोर्ट को इसके बारे में क्या संज्ञान नहीं है? चीजों को मुद्दे कोर्ट को इन सारे बातों के बारे में संज्ञान है वारिस जी, और कृपया करके 12 सितंबर 2022 का ऑर्डर देखें, 31 मई 2023 का ऑर्डर देखें, सुप्रीम कोर्ट की अब हियरिंग के ऑब्जर्वेशंस देखें। सुप्रीम कोर्ट आपने सिर्फ एक कानून को अपना फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बना लिया नाविका जी, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सर्वे हो, और जिस तरह से जब ज्ञान व्यापी में सर्वे हुआ था, कटी हुई मूर्तियां मिली थी, मौजूद टैंक के अंदर शिवलिंग मिला था, वेस्टर्न वॉल ने चीख चीख के कहा था ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले थे। उसी तरह से जब शाहीद का मस्जिद का सर्वे होगा, पूरा सच सामने उभर के सामने आएगा, और यही इनकी दिक्कत है, ये नहीं चाहते सर्वे हो और यहीं पे आवाज दबा दी जाए, और आवाज दबेगी नहीं। सर्वे होगा, आगे क्या होगा, क्या ये सारा मुद्दा कोर्ट में तय होगा। तो वारिस पठान जी, आप पूरा डिबेट हार गए, आप चैनल के बाहर गए, कोर्ट में बैठ जाएंगे। यहाँ पे जज ज्यूरी और एग्जीक्यूटर हैं, जो भी होगा वो कोर्ट में, आपको बधाई हो, वो जो भी होगा वो कोर्ट में होगा, कोर्ट की इजाजत के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू जी बिल्कुल। तो कोर्ट ने इस वक्त कहा है कि सर्वे पर कोई रोक नहीं है। अब मैं मुद्दे पर आती हूं वारिस पठान जी, जब आप इतने तहश में आ जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि भैया कोर्ट से ही फैसला आया है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, अभी स्टे लगा नहीं है, आगे लग जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी लगा नहीं है, तो आप इतनी तहश में मत आएं। तो मैं तीसरे सवाल पर चलती हूं, और ये आपका फेवरेट सवाल है कि मथुरा पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या रोल रहेगा? क्या ये इस सारे मुद्दे को अटकाएगा, भटकाएगा या नहीं? अब इस पर पहले विष्णु जैन से पूछती हूं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आप क्यों कहते हैं कि इज नॉट एप्लीकेबल? बड़ा अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उसको बड़े सरल भाषा में समझा देता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कट ऑफ डेट क्या मेंशन्ड है? 15 अगस्त 19। सर अब देखिए, मैंने आपको सुनाया, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया। मेरी बात का सुन, मैं सवाल करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कट ऑफ डेट मेंशन्ड है वो है 15 अगस्त 1947, और जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में केस फाइल किया, ये कहते हुए कि भगवान की संपत्ति में कुछ लोग घुस आए हैं और वहां पे मस्जिद निर्माण कर रहे हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किसने किया? सेक्शन 3 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन इन्होंने किया है। आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके फेवर में अप्लाई होता है? अरे भाई, लॉ जो अप्लाई होता है फैक्ट्स के आधार पर अप्लाई होता है। 1964 में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने केस दायर किया था, उसमें लिखा कि मस्जिद तामील हो रही है, इसको रोका जाए। तो मतलब मस्जिद तामील कब हो रही थी? 15 अगस्त 1947 के बाद जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कट ऑफ डेट है, इसलिए यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, और आपने सेक्शन 3 का वायलेशन किया है। वारिस पठान जी जवाब दीजिए। जैसे कि ज्ञान व्यापी में किया था। ये सरासर झूठ बात है, सरासर झूठ बात है। देखिए नविका जी, पहले तो ये जो ऑर्डर हुआ है सर्वे का, इसका मैं कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आया, उसका मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं इस जजमेंट से, जो मुझे अधिकार है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। बात रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल एज स्टेटेड बाय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस JS वर्मा। हम देख चुके हैं क्या हो रहा है। आज प्रेजेंट पोजीशन ये है कि इस तरह की डिस्प्यूट ना हो मस्जिद या किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया था। ये उसको क्यों नहीं मानते? सारी चीजें जो बता रहे हैं विष्णु भाई यहां पर बैठ के, ये सारी चीज कंसीडर कर ली गई थी पार्लियामेंट में उस समय। सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद ये पास हुआ पार्लियामेंट से, जो आज तक इस वक्त तक एग्जिस्टेंस में है, वो ओवररूल नहीं हुआ है। तो आपको हमको सबको संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। तो फिर अगर ये आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन वारिस पठान जी
संविधान का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आपने कहा संविधान, आपने कहा संविधान, इस देश के कोर्ट संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो लॉज बने उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। आप मानते हैं ना कोर्ट इसीलिए है ना इस देश में। ट्रायल कोर्ट में सब जुडाइज मैटर है। नहीं तो अभी तो सब जुडिस है, इसीलिए मैं नहीं कह रही कि वहां मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही। पर अगर आप मानते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है और अगर कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करता है, तो आप कोर्ट को इजाजत क्यों नहीं देते कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं इस केस पे कोर्ट तय करेगी कि आप तय करेंगे? कोर्ट ने जनवरी 9 को हियरिंग के लिए रखा था। जनवरी 9 के पहले क्या जरूरत थी जाके लोगों को इस तरह का ऑर्डर लेना? 2024 के पहले पोलराइज करना चाहते हैं ये लोग, मुसलमानों के खिलाफ इन लोग को ये सब करना है। तो आप कह रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गई है। नहीं, आप बहुत संगीन चार्ज लगा रहे हैं। सीरियस मैटर वारिस पठान जी, सीरियस मैटर। आर यू सेइंग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉलिटिकल रीजन से ये ऑर्डर दिया है? आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? I don't say that. I say I respectfully disagree with the order passed by the Allahabad High Court for survey, and I quoted Justice J.S. Verma, the ex-Chief Justice of the Honorable Supreme Court, where he clearly mentioned Supreme Court is supreme but not infallible. I go by that, but they are committing contempt. ये contempt of court कर रहे जो 1968 में कोर्ट के आदेश हो चुका है, मैटर सेटल हो चुका है, मगर ये सेटलमेंट को नहीं मानते। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उनको जाना चाहिए तो सेटलमेंट के ऑर्डर के आगे। ये कह रहे हैं सर्वे के लिए, सर्वे क्यों कराना है? आप चाहते हो आप सर्वे बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वे के बाद बंद कर दो, यहाँ पे वसूल नहीं कर सकते। ये सेम रिएक्शन था, बाय द वे, ये सेम रिएक्शन था जब राम जन्मभूमि केस भी आया था और उसका वर्डिक्ट आया था, तब भी यही लाइन थी आपकी वारिस पठान जी, नए डायलॉग की जरूरत है, स्क्रिप्ट राइटर बदल दीजिए। इनकी बात में कितना बड़ा विरोधाभास है। आपको ये सारे लोगों को ये लीगल हिस्ट्री पता है कि 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो शिवलिंग मिला था उसके एएसआई सर्वे का ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। क्या आपने किसी भी पक्ष को सुना कि उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल? तब ये कहां पे थे? आपको पता है नाविका जी, 3 साल तक 45 हियरिंग्स मैं और मेरी लीगल टीम मथुरा कोर्ट भागी और इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था 1.5 साल तक। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट इनफेलिबल नहीं थी, पर जब आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया है, तो वारिस भाई कह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहा है तो आप पोलराइज कर रहे हैं। वारिस भाई प्लीज जरा आप लॉयर हैं, इस केस की लीगल हिस्ट्री देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपके वकील अपीयर हुए, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 पेज का ऑर्डर लिखाया है, उसके बाद ये आदेश पारित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इज लीगली ड्यूटी बाउंड टू इसका ट्रायल करने के लिए। और नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब जहांगीरपुरी में डिमोलिशन हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था डिमोलिशन, देन सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इनफेलिबल। जब इन्होंने राम मंदिर का केस अभी कोर्ट किया और राम मंदिर के केस में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला, तब सुप्रीम कोर्ट इनफेलिबल नहीं था। 5 एकड़ ऑल्टरनेट ये नेचुरल विष्णु जैन जी, ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है। जिसके पक्ष में होता है कोई भी वर्डिक्ट, वो गदगद होता है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं, हर जगह लीगल केस लेके वापस लेंगे जब तक शरीर में आखिरी सांस है। जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उसको वापस लेने का काम करेंगे कोर्ट के माध्यम से। और ये लीगल आगाज हो चुका है, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो। ऐसे तो हजारों मंदिर है पूरे देश में अगर ये काम शुरू हो जाएगा, जैसा मन्नी साहब ने कहा, इस्लामिक लॉ के वारिस पठान जी, बस 10 सेकंड का समय है। मैं आपको आखिरी वर्ड देती हूं वारिस पठान जी, 10 सेकंड। नहीं, देखिए अभी इन्होंने क्या कहा कि हम जितने भी मस्जिद है, जो भी कुछ है, सबको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये थ्रेट
गलत है। मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले जब इसकी हियरिंग करेगा। मैंने कहा है कि बात लीगली नंबर वापस 2, लेंगे। जब एक मर्तबा प्लेसिस ओवरसीज एक्ट ने बोल दिया कि ऐसा नहीं, तो फिर क्यों इस तरह का बयान करते हैं? अभी इन्होंने बोल दिया, देखिए यहाँ पर बैठ कर आपके सामने। मैं तो चाहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब इस बात का संज्ञान ले कि पेशकार का वकील ने इस तरह की बात करी है। वापस लेने जा रहा हूं, और जो इस शो पे मैंने बातें कही हैं, मैं अपनी बातें वापस लेने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कंटेम्पचुअस है, यू आर फ्री टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मी। मैं आप दोनों को बहुत इज्जत से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहती हूं, वारिस पठान जी, आप भी मेरी बात सुन लें कि जो भी होगा, कंटेंशंस हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं और हर किसी डिस्प्यूट में दो पार्टीज होती हैं। एक चीज कहती है, दूसरी चीज कहती है। आखिर में फैसला कोर्ट का हम सबको मानना है, यही संविधान हमें बताता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुगलों के शासन, खासकर औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी जगहों पर हिंदुओं का संघर्ष जारी रहा, क्योंकि ये उनकी आस्था का मसला है। अब इसे किसी कानून या किसी समझौते के नाम पर कुचला नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि हिंदू पक्ष काशी, मथुरा को लेकर जो दावे कर रहा है उसकी लीगल स्क्रूटनी हो। इसलिए मथुरा पर सर्वे के कोर्ट के आदेश का सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सच छुपता नहीं, दबाने से रुकता नहीं। आज जो हुआ है वो कोर्ट के संज्ञान में है, कल जो होगा वो भी कोर्ट की इजाजत से ही होगा, और इस पर हर भारतीय बिल्कुल एक तरह से मिटा हुआ है, कमिटेड है।